پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام نے چیئرمین محسن نقوی کے استعفے سے متعلق گردش کرنے والی افواہوں کی تردید کی ہے اور واضح کیا ہے کہ محسن نقوی نے پی سی بی کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا۔ سابق خاتون اول اور پاکستان تحریک انصاف کی بانی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جیل میں اپنی رہائش کی بہتر سہولتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے وکلاء کے ذریعے عدالت میں درخواست دائر کی گئی جس میں انہوں نے اپنے قانونی حق کے تحت بہتر سہولتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک فوج کی سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تکوارہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک کامیاب آپریشن کیا جس کے دوران فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد جہنم میں واصل ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف معلومات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا اور اس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی معیشت اور تجارتی پالیسیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جان بوجھ کر اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ پیدا نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی معیشت کو درپیش چیلنجز کی ایک بڑی وجہ ماضی کی امریکی قیادت ہے جس نے ناسمجھی اور کمزوری کے باعث ایسے فیصلے کیے جن سے بین الاقوامی طاقتوں کو امریکہ کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت ہوئی جس کی صدارت جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کی۔ عدالت میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے پیش نہ ہونے پر ان کے وکیل نے صفائی میں موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل اس وقت تک پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت پر ہیں اور چونکہ عدالت میں بریت کی درخواست پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ہے اس لیے اس پر سماعت کے لیے ملزم کی ذاتی حاضری ضروری نہیں ہے۔ یوں بھی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ پاک فوج کی سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے تکوارہ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک کامیاب آپریشن کیا جس کے دوران فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد جہنم میں واصل ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن دہشت گردوں کے خلاف معلومات کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا اور اس میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں دہشت گردوں کا خاتمہ ہو گیا۔ ISPR کے ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک توپ خارجی سرگنا شیرین بھی شامل تھا۔ شیرین متعدد دہشت گرد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور پاکستان کے کئی علاقوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اس کے ساتھ ہی مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جس سے دہشت گردوں کی باقی ماندہ سازشوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ شیرین کی شناخت ایک خطرناک دہشت گرد رہنما کے طور پر ہوئی تھی جو کئی بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھا اور 20 مارچ 2025 کو کیپٹن حسنین اختر شہید کی شہادت میں بھی اس کا ہاتھ تھا ISPR کے مطابق اس آپریشن نے اس سنگین جرم کا بدلہ لے لیا ہے اور شیرین کو اپنے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پاک فوج نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ آپریشن کے بعد علاقے میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ بچ جانے والے دہشت گردوں کو بھی گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور کسی بھی دہشت گرد کو پناہ نہیں لینے دیں گے۔ اس آپریشن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ پاک فوج ملک امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ سابق خاتون اول اور پاکستان تحریک انصاف کی بانی عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے اڈیالہ جیل میں اپنی رہائش کی بہتر سہولتوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی جانب سے وکلاء کے ذریعے عدالت میں درخواست دائر کی گئی جس میں انہوں نے اپنے قانونی حق کے تحت بہتر سہولتوں کا مطالبہ کیا ہے۔ درخواست میں بشریٰ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ بطور خاتون اول وزیر اعظم ہاؤس میں مقیم رہ چکی ہیں۔ وہ اپنی بہتر زندگی کے معیار کی بنا پر وہ قانون کے مطابق جیل میں بھی بہتر سہولتوں کی حقدار ہیں۔ بشریٰ بی بی نے اپنی درخواست میں یہ موقف بھی اپنایا کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ
سپرنٹینڈنٹ को जेल में बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम जेल हकाम ने उनकी दरख्वास्त पर कोई तवज्जो नहीं दी। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि उनके शोहर इमरान खान को उसी जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की गई हैं, इसलिए उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि जेल रूल 1978 के तहत बुशरा बीबी को भी जेल में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएं और सुपरिटेंडेंट इरियाला जेल को इस हवाले से कानूनी जिम्मेदारियों की तकमील करने की हिदायत की जाए। इस दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत सुपरिटेंडेंट इरियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया। याद रहे कि बुशरा बीबी इरियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस में 7 साल कैद की सजा काट रही हैं। इस केस में इन्हें कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ का मुतालबा करने का हक हासिल है। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत हुई, जिसकी सदारत जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुबश्शिर हसन चिश्ती ने की। अदालत में अली अमीन गंडापुर की जानिब से पेश न होने पर उनके वकील ने सफाई में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनके मौकिल इस वक्त तक पेशावर हाई कोर्ट से जमानत पर हैं और चूंकि अदालत में बरीयत की दरख्वास्त पहले ही जमा कराई जा चुकी है, इसलिए इस पर समाअत के लिए मुल्ज़म की जाती हाजिरी जरूरी नहीं है। वकील सफाई ने मजीद कहा कि मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया, जिसका मकसद अली अमीन गंडापुर की किरदार कशी और सियासी साख को नुकसान पहुंचाना है। उनके मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दायर करदा इल्जामात बेबुनियाद है और अदालत को चाहिए कि पहले बरीयत की दरख्वास्त को सुने और फैसला करे। ताहम अदालत ने वकील सफाई का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का फैसला किया है। मुल्जिम की जाती हाजिरी कानून के मुताबिक जरूरी है और इसमें रायत नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत की तारीख 26 अप्रैल मुकर्रर कर दी है। वाज़िया रहे कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है, जिसमें इन पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि इनके कब्जे में शराब की बोतलें और ममनुआ असला बरामद किया गया था। ये वाकया इस वक्त पेश आया था जब वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद थे और पुलिस ने इन्हें एक कार्रवाई के दौरान रोका था। ये मुकदमा अब सियासी और कानूनी हलकों में तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जबकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से इसे सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। उनकी कानूनी टीम का कहना है कि वो इस फैसले को चैलेंज करने पर भी गौर कर रहे हैं और तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे ताकि इंसाफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम ने चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस्तीफे से मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों की तरदीद की है और वाज़िया किया है कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया और न ही ऐसा कोई इरादा है। हालिया दिनों में कुछ खेलों की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस पर यह खबर शाया हुई थी मोहसिन नकवी मसरूफियात के बाद पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। इस अफवाह के बाद पीसीबी हकाम ने तरदीद करते हुए कहा कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं और मोहसिन नकवी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के लिए भरपूर अज़म रखते हैं। ये अफवाहें इस वक्त फैलना शुरू हुई जब मोहसिन नकवी को एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर मुंतखब किया गया था। इस इंतखाब के बाद कुछ हलकों ने ये क्यास आराइयां शुरू कर दी कि चूंकि मोहसिन नकवी को एक नई और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए वो अपने मौजूदा ओहदे पर बोझ महसूस करते हुए पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर काम करने में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। ताहम पीसीबी हकाम ने इस बात की वजाहत की है कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा देने के बारे में कभी नहीं सोचा और वो क्रिकेट बोर्ड के मामलात में अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद कहा कि मोहसिन नकवी की क़यादत में क्रिकेट बोर्ड का अमला अपनी तमाम तर तवानाइयां पाकिस्तान क्रिकेट को फरोग देने और इसे आलमी सतह पर एक नया मुकाम देने के लिए मसरूफ है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी की क़यादत में पीसीबी ने अहम फैसले किए हैं और क्रिकेट की तरक्की के लिए जदीद इक़दाम उठाए हैं, जिससे ये साबित होता है कि वो न सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर अपने ओहदे की जिम्मेदारियों से आगाह हैं, बल्कि क्रिकेट की आलमी तंजीमों में भी अपना असर रसूख बढ़ा रहे हैं। मोहसिन नकवी की एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब होने के बाद कई हलकों ने ये सवाल उठाया था कि ये दोहरी जिम्मेदारी उनके लिए बोझ बन जाएगी। ताहम पीसीबी ने इन क्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को कामयाबी के साथ निभा रहे हैं। वो पीसीबी के चेयरमैन के तौर पर अपने फराइज पूरी लगन से अदा कर रहे हैं। ये तरदीद इस वक्त सामने आई जब क्रिकेट शायकीन और मीडिया में ये सवाल उठ रहे थे कि मोहसिन नकवी दोहरी जिम्मेदारी के बोझ को किस तरह संभाल पाएंगे और आया वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से अदा कर सकेंगे। ताहम पीसीबी हकाम ने इस बात का यकीन दिलाया कि मोहसिन नकवी दोनों अहम ओहदों पर काम करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे और इन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये पैगाम दिया गया कि मोहसिन नकवी की क़यादत में पीसीबी अपनी कामयाबियों की राह पर गामजन है और क्रिकेट के आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की अहमियत में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी मैशत और तजारती पॉलिसियों पर इजहार ख्याल करते हुए वाज़िया किया है कि उन्होंने कभी भी जानबूझकर स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया। उनका कहना था कि अमरीकी मैशत को दरपेश चैलेंजेस की एक बड़ी वजह माजी की अमरीकी क़यादत है, जिसने नासमझी और कमजोरी के बायस ऐसे फैसले किए जिनसे बैनुल-अक़वामी ताकतों को अमेरिका के वसाइल से फायदा उठाने का मौका मिला। सदर ट्रंप ने कहा कि जब किसी निज़ाम को दुरुस्त करना हो तो इसके लिए वक्ती तौर पर सख्त इक़दाम उठाने पड़ते हैं और अगर दवा कड़वी हो तब भी इसे पीना जरूरी होता है ताकि बीमारी
का मुकम्मल इलाज मुमकिन हो। उनका कहना था कि उन्होंने टैरिफ की पॉलिसी अपनाते हुए अमेरिका के मुफाद में फैसले किए और इस पॉलिसी के बायस अरबों डॉलर की आमदनी वापस अमेरिका लाई गई है, जो माजी में दूसरे ममालिक को फायदे की सूरत में जा रही थी। अपनी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि वो स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल से मुतालिक कोई पेशगोई नहीं कर सकते, क्योंकि मैशियत एक पेचीदा निज़ाम है जो मुख्तलिफ आलमी अवामिल से मुतासिर होता है। ताहम उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि जब तक चीन के साथ अमरीकी तजारती खसारे मुकम्मल हल नहीं निकलता, तब तक किसी किस्म के बामकसद मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। सदर ट्रंप ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो टैरिफ के मामले पर यूरोपीय और एशियाई ममालिक के मुतअद्दिद रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं और उनके साथ इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है, ताकि अमेरिका का आलमी तजारती निज़ाम में किरदार मजबूत तर हो और अमरीकी मफादात का हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके।